Next question number 29. The moon's radius is 1 by 4 that of Earth, and its mass is 1 by 80 times of Earth. If G represents acceleration due to gravity on the surface of Earth, then on the surface of Moon, what is the value of acceleration due to gravity? Simple सा question है. The question is Moon's radius of Moon is 1/4 of radius of Earth. मतलब RM equal to RE by 4. आगे बोला है its mass, मतलब mass of Moon is mass of Earth by 80. Acceleration due to gravity on the surface of Earth is G. What is acceleration due to gravity on the surface of Moon? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. What is the formula for acceleration due to gravity? Gm by, इसमें G तो कांस्टेंट होता है, मतलब G प्रोपोर्शनल टू m by r स्क्वायर. तो G मून अपॉन G अर्थ इक्वल टू, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. तो G E को G बोला है तो G बोल देंगे. mm by me इज 1 by 80. RE by RM 4 और 4 का स्क्वायर 16 by 80 1 by 5. तो Gm by G is 16 by 80, that is 1 by 5. हो गया क्वेश्चन खत्म. तो Gm is G by 5. Done. Next question. If the radius of Earth were to shrink by 1%, तो Earth का radius 1% से shrink होने वाला है, ऐसा बोला है. If it was were to shrink by 1%, its mass remaining the same, मतलब without change in mass, सिर्फ size छोटा होगा उसका, the acceleration due to gravity on the Earth's surface would decrease by 2%, remains unchanged, increase by 2% or increase by 1%. Question is a joke. देखो क्या है, G is proportional to 1 by r square. क्यों ऐसा? क्योंकि मास कांस्टेंट है. G equal to Gm by r square, लेकिन G और M कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. R कम होगा तो G बढ़ने वाला है, इनवर्स रिलेशन है, राइट. तो डेफिनेटली डिक्रीज आएगा नहीं, डेफिनेटली रिमेन्स अनचेंज आएगा नहीं. अब सिर्फ इंक्रीज बाय 2% एंड इंक्रीज बाय 1%. अगर आपको यूनिट मेजरमेंट याद है, ऑप्शन नंबर सी. चलो फिर भी सॉल्व करके बताता हूं मैं. They are asking you what is the change in the acceleration due to gravity. So if acceleration due to gravity is proportional to 1 by r square, अगर आपको याद होगा ये, तो कैसे लिखते हो? डेल्टा G by G into 100 इक्वल टू, इंडेक्स हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल्टा R by R, और माइनस कभी नहीं आता है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, इनटू 100, राइट. तो ये वैल्यू दी है 1%, बोला है ना 1% से कम होगा, तो आंसर इज 2%. हो गया, डन, खत्म. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 30. So next question. So such questions are extremely simple. अगला क्वेश्चन. The height of a point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is. Height of the point vertically above the Earth's surface. आपको h का वैल्यू पूछा है, at which acceleration due to gravity becomes 1%. 1% रह जाना मतलब 99% लॉस होना, और 99% लॉस होना मतलब हाइट बहुत ज्यादा होना, और हाइट बहुत ज्यादा होना तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? R upon R plus h square. सिंपल क्वेश्चन है. तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज acceleration due to gravity at height is just 1% of surface value. ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है. तो 1% होता है 1 by 100
into g. Therefore, you will have gh by g equal to 1 by 100. तो gh by g आप यूज करोगे r upon r plus h square. But gh by g is r upon r plus h का square. Therefore, from equation number 1 and 2, you will have r upon r plus h whole square equal to 1 by 100. Taking square root, r upon r plus h equal to 1 by 10. Therefore, 10r equal to r plus h. Therefore, h equal to 9r. So height is 9r. So height is 9r, option number B. Next question. ये तो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने ऑलरेडी. At surface of Earth, weight of person is 72 Newton. Then it's his weight at height r by 2. Surface of Earth is, याद होगा, 32. तो रिपीट हुआ है. Question number 33. If the distance between the centers of Earth and Moon is capital D, and the mass of Earth is 81 times the mass of Moon, then at what distance from the center of Earth the gravitational force will be 0? तो क्वेश्चन ऐसा है, this is Earth, let us say, and then you have Moon. Here you have Moon. The distance between Earth and Moon, center of Earth and center of Moon, this distance is how much? Capital D. इसको बोला है capital D. The distance is capital D. So at what distance from the center of Earth? At what distance from the center of Earth will the gravitational force be 0? तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है. अब तो दोनों मेथड अच्छे से समझ लो. पहले क्वेश्चन समझा क्या? मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, ऐसा बोला है. अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर में डिस्टेंस कैपिटल डी है. इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा? एंड डिस्टेंस यू आर सपोज्ड टू मेजर फ्रॉम अर्थ. तो डिस्टेंस आपको अर्थ से मेजर करना है. तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बी 0? तो एक काम करो, यहाँ पे डमी मास रख दो. डमी मास मतलब कोई भी मास, विच एवर यू वांट. आई विल जस्ट कॉल दिस मास एज m. दिस इज मास ऑफ अर्थ, this is mass of moon, and we have some dummy mass at this point, let us say p. तो मान लेते हैं p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, और p पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ लेट अस से इज x. तो ये कितना आ गया? d माइनस एक्स. तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस d माइनस एक्स है. अब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होने का मतलब क्या? तो gravitational force at point P is 0, which means इसका मतलब होता है जितना इस मास पे अर्थ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है उतना ही मून कर रहा है. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून. तो ये अप्रोच नंबर 1 है. तो दिस इज मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए. दिस इज मेथड नंबर 1. ये समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी सेम कॉन्सेप्ट है. सेम दो चार्जेस है, बीच में चार्ज रख दो. उस चार्ज पे फोर्स 0, मतलब पहले चार्ज का फोर्स और दूसरे चार्ज का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा. टर्न. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू मून, दे बैलेंस आउट ईच अदर. व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? G m1 m2. यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है? स्मॉल मास पे. कौन लगा रहा है? अर्थ. तो मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ that object upon distance square x square equal to g mass of moon mass of object upon d minus x का square. g cancel, mm भी cancel, right? और आपको दिया हुआ है, आपको ये भी बताया है मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो m e के पे आ जाएगा 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून अपॉन एक्स स्क्वायर
ये स्मॉल m मास ऑफ मून है, दिस इज नॉट दैट m। ओके, तो मास ऑफ मून, तो कंफ्यूजन कम करने के लिए व्हाट आई शुड डू इज, मैं मास ऑफ मून को से लिखता ही नहीं हूँ, बेटर रहेगा, यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, कैपिटल एम या फिर फाइन कैपिटल एम, गुड। तो कैपिटल एम इज मास ऑफ मून। ओके, तो मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, और यहाँ पे क्या बचा, मास ऑफ मून अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मास ऑफ मून भी हो गया कैंसल, और 81 नीचे एक्स स्क्वायर, वहां पे डी माइनस एक्स स्क्वायर सब स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर रूट। तो 9 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी एक्स, 1 अपॉन डी माइनस एक्स, क्रॉस 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 मल्टीप्लाई कर लो, 9d माइनस 9x इक्वल टू x, शिफ्ट कर दो 10x इक्वल टू 9d, तो x इक्वल टू 9/10d, तो 9/10d ऑप्शन नंबर डी। ये मेथड नंबर 1। यस, वो तो वैसा कर भी सकते हो, तो वही बता रहा हूँ, देयर आर टू मेथड्स इन विच यू कैन सॉल्व एंड थर्ड वन इज ओरल। तो मेथड नंबर टू, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना आपने दो चीजें डिफाइन की थी, पहले आपने बोला था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फिर आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। तो जहां पे फोर्स जीरो होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो होता है, रिमेंबर दिस। जिस पॉइंट पे फोर्स जीरो हो जाए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो जिसको ई। यहाँ ग्रेविटेशन है, सेम कॉन्सेप्ट है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो है। इसलिए जब हमने थ्योरी स्टार्ट किया था तब मैंने आपको पूरा टेबल ही बना के दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्विवेलेंट एनालॉग इसमें कौन था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अब ऐसा ही बोल सकते थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू अर्थ is equal to gravitational field intensity at point P due to moon। तो ऐसा भी बोल सकते हो। What was the formula for gravitational field intensity? Gm by r square, g into source mass अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे x, क्योंकि अर्थ डिस्टेंस कितना है x, इक्वल टू g मास ऑफ मून को मैंने एम बोला है अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर, जी हो गया कैंसल। ये है 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर, d माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर एम भी हो गया कैंसल, स्क्वायर रूट ले लोगे तो 9/x इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स, फिर सॉल्व करके वापस वही मिलेगा 9d/10, राइट। दूसरा, एज यू सेड, और एक मेथड है रेशोस, रेशोस भाई, देखो रेशोस भी हो सकता है, तो देखो दूसरा ऐसा है, लुक एट द ऑप्शंस, d/2 हाफ डिस्टेंस पे तो होगा नहीं, हाफ डिस्टेंस पे जीरो नहीं होगा, वो कब होता है जब दोनों मासेस सेम हो। अगर मैंने दो सेम मासेस रख दी देन द फोर्स एट द सेंटर विल बी जीरो, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। 4d/3 ये d से ज्यादा डिस्टेंस है, 4d/3 इज अ डिस्टेंस ग्रेटर देन d, तो पॉइंट इन बिटवीन आएगा ही नहीं, पॉइंट कहाँ जाएगा वहां पे, तो वो भी नहीं आ सकता। बचा दो, 2d/3 एंड 9d/10, तो अब यस, you were very close to the answer। दो तो नहीं आएंगे, d/2 नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए दोनों मासेस सेम चाहिए, तब सेंटर पे फोर्स जीरो होता है, वो सेम है नहीं। 4d/3 आ नहीं सकता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो सकता है, ग्रेविटेशन में हो नहीं सकता। ग्रेविटेशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, मासेस ही होते हैं, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वहां वहां ठीक है, यहाँ नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आएगा। बचे दो ऑप्शंस, 2d/3 एंड 9d/10। हाउ इज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो एम मतलब स्क्वायर जैसा टर्म है, स्क्वायर बराबर स्क्वायर जैसा टर्म है ना, और वो 81 था, 81, तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, तो रेशो क्या आएगा 9:1, तो 9d/10 1d/10, तो 9d/10 एंड 1d/10,
तो 9/10 और d/10 ऐसा रेशियो ही आएगा। वही आया ना हमारा आंसर, क्या आया? 9/10। तो यू कैन ऑल्सो थिंक इन दोज टर्म्स। तो 2-3 मेथड है, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। Okay, so let us move to the next question. क्या था क्वेश्चन नंबर 34? Weight of a body of mass m decreases by 1% when it is raised to height h above the earth surface. पहली बात तो वेट से 1% से डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी 1% से कम हो रहा है। सिर्फ 1% से कम होना मतलब 99% रिटर्न होना, मतलब हाइट कम होना। हाइट कम होना तो 1-2h/r। और पिछले क्वेश्चन में था 1% बच गया था, तो 99% लॉस था, तो r/r प्लस h का स्क्वायर। If the body is taken to a depth h in a mine, change in weight is। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पहले आप उसको एक हाइट पे लेके गए, एक बॉडी को पहले आप एक हाइट पे लेके गए, यू हैव टेकन द बॉडी टू सम हाइट, दिस इज अर्थ लेट अस से, यू हैव टेकन अ बॉडी टू सम हाइट विच इज स्मॉल हाइट, क्योंकि वेट इज डिक्रीजिंग बाय ओनली 1%, विच मीन्स द हाइट इज वेरी स्मॉल। तो आप उसको पहले लेके गए एक बहुत स्मॉल हाइट पे, जहां पे उसका वेट 1% से कम हो गया, और अब आप उसी बॉडी को लेके जा रहे हो एट डेप्थ, एट द सेम डेप्थ, मतलब जितना हाइट था उतना ही डेप्थ है। तो अब उसका वेट कितने से कम होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अच्छा है। तो ये हाइट h है, ये डेप्थ भी h है, मतलब डेप्थ इक्वल टू क्या डालना है, h। तो जो पहला कंडीशन है वहां से h का आपको वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और जो दूसरा आपके पास तो पता ही, दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज जी एच एंड व्हाट इज जी डी। हाँ, जी एच इज इक्वल टू 1-2h/r इंटू जी। तो जी एच बाई जी इक्वल टू 1-2h/r, इक्वेशन नंबर 1। और ऊपर से आपको बोला है कि वेट कितना परसेंट से कम हुआ, 1% से कम हुआ, तो रह कितना गया, 9। अब वेट कभी भी प्रोपोर्शनल होता है जी को, तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो वेट कम होना मतलब जी कम होना, तो जी एच। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो जी -1% ऑफ जी लिख देता हूँ, वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिखना चाहिए था 99%। वेट 1% से कम हुआ मतलब जी की वैल्यू 1% से कम हो गई, कम हो गई मतलब -1% करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास जी एच इक्वल टू जी -1/100 इंटू जी। तो जी निकाल लिया कॉमन और यहाँ पे लेके आगे कर दिया डिवाइड, तो 1 - 1/100 कितना होता है, 99/100, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। therefore from equation number 1 and 2 you will have, क्या आएगा बताओ, 1-2h/r इक्वल टू 99/100, 1-2h/r इक्वल टू 99/100। तो 1 - 99/100 इक्वल टू 2h/r, 100 - 99 इज 1, 1/100 इक्वल टू 2h/r। r को शिफ्ट करो, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो h इक्वल टू r/200, r/200। तो आपको हाइट मिल गया 6400/200, 32 किलोमीटर का हाइट है ये। ओके, 32 किलोमीटर का हाइट। अब केस टू में आप लेके जा रहे हो डेप्थ पे लेके जा रहे हो, तो जीडी विल बी, जीडी बाई जी विल बी 1 - d/r। लेकिन डी और एच की वैल्यू है सेम, बट डी इक्वल टू एच और एच इक्वल टू r/200। सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मिल जाएगा आपको जी डी बाई जी इक्वल टू 1 - r/200 इंटू आर, आर आर हो गया कैंसल, तो जी डी बाई जी 199/200। सही है, चेक कर लो एक बार, कुछ भी गलत नहीं हुआ, ऑल करेक्ट, सही, गुड। तो 199/200 मतलब क्या, व्हाट विल बी योर आंसर देन। पहली बात तो ये गलत है, दैट इज आई आस्क्ड यू,
सही है आपने बोला, यस सही है, इट्स नॉट राइट, इट इज नॉट राइट। परसेंटेज चेंज ऐसा निकालते ही नहीं हो तुम, यू डू नॉट फाइंड आउट परसेंटेज चेंज लाइक दिस। वो हमने अभी तो किया था। हाँ वेरी गुड, तो वैसा ही तो करना है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है तुमको बताओ। कैसे निकालते हो परसेंटेज चेंज, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। सही बात। तो डेल्टा जी मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो जीडी का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था, 1 - d/r इंटू जी। थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना सीख लो, क्योंकि जेई नीट में डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम डायरेक्टली सब स्ट्रेट फॉरवर्ड करते रहोगे। डेल्टा जी बाई जी, व्हाट इज डेल्टा जी, जी फाइनल मतलब जी डेप्थ माइनस जी। तो एक काम करना, ऐसा कर लेना, इसको जी से मल्टीप्लाई कर लिया, यस, इसको जी से मल्टीप्लाई कर लिया, यस। तो जी डी माइनस जी, इसको यहाँ ले आया माइनस हो गया, माइनस जी डी बाय आर, बराबर। इस जी को शिफ्ट कर दिया, तो जी डी माइनस जी बाय जी इक्वल टू माइनस डी बाय आर। ये क्या है पता है, डेल्टा जी बाय जी है, तो दिस इज डेल्टा जी बाय जी इक्वल टू माइनस डी बाय आर। तुमको पूछा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस डी बाय आर इंटू 100। ओके, व्हाट इज डी वैल्यू, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, एच, और एच इज आर बाय एच, आर इज आर बाय 200, सॉरी, आर आर हो गया कैंसल, ऊपर 100 नीचे 200, 1/2, व्हाट इज 1/2, माइनस 0.5। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट दैट इट इज डिक्रीजिंग, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द वेट विल डिक्रीज, मतलब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज। तो 0.5% से डिक्रीज होगा, 0.5% से डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस बाय 0.5%। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी बेसिकली आंसर्ड विदाउट सॉल्विंग। रीजन इज वेरी सिंपल, कभी भी कोई भी फॉर्मूला को सिर्फ पढ़ो मत, उसको समझ के लो अच्छे से, तो तुमको ज्यादा बेटर क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। एक चीज तो पक्का था, तुम हाइट पे जाओगे या डेप्थ पे जाओगे, कम तो होने ही वाला है। जस्ट फॉर अ ट्रायल बेसिस एक काम करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं हाइट की, सम वैल्यू, टेल मी सम वैल्यू ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस। 2r नहीं, इट शुड बी लेस देन r, 0 से r के बीच में, 2r/3, 2r/3 ले लो, r/2 ले लो, बेटर, r/2 ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन थोड़े फास्ट होंगे। तो मैं अगर gh देखता हूँ, व्हाट इज gh, आपने बोला r/2, r/2 मतलब गुड अमाउंट ऑफ हाइट है, तो r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। तो इस केस में अगर आप देखोगे, r अपॉन r प्लस h आपने बोला r/2, 2r/3 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। नीचे क्या है, 3r/2, 2 गया ऊपर, बराबर, तो 2r और नीचे 3r, आर आर हो गया कैंसल, कितना आ गया, 4/9, 4/9 जी, बराबर। तो जी एच बाई जी आपके पास आ गया 4/9 बेसिकली। अगर मैं सेम डेप्थ भी लेता, अगर मैं सेम डेप्थ लेता, तो जी डी इक्वल टू जी 1 - डी इज r/2, और r कैंसल है, कैंसल, तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू हाफ, कितना, हाफ। सही है, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, हाँ, 4/9 ज्यादा है कि 1/2, 1/2 तो 0.5, 0.44। मतलब क्या, इससे क्या समझा आपको, व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, फॉर द सेम डिस्टेंस अबोव एंड बिलो, बराबर, मोर चेंज किस में है, डेप्थ पे है कि हाइट पे है, डेप्थ पे है कि हाइट पे है। तुम 4/9 से मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है, वो अभी कितना आया 4/9, 0.44, मतलब कितना परसेंट हो गया, 44%, रफली रफली 44% हो गया, वो कितना है 50%। तो यहाँ पे कितना बचा,
44, वहां कितना बचा? 50 बचा, तो कितना लॉस हुआ? 56, वहां पे कितना लॉस हुआ? 50, तो लॉस कहाँ ज्यादा हुआ? अगली बात ध्यान में, यहाँ तक क्लियर? फॉर द सेम डिस्टेंस अबोव एंड बिलो, मोर लॉस इज एट हाइट, सो लेस लॉस विल बी एट डेप्थ। पक्का? लॉस तो होगा, डिक्रीज तो होगा ही होगा, वो तो क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो डिक्रीज तो होने वाला है, इंक्रीज तो होने नहीं वाला है। तुम देख लो ऑप्शन, तो जहां जहां इंक्रीज लिखा है वो तो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। सही है, बचा बात डिक्रीज का। जब उधर 1% डिक्रीज था हाइट पे, सेम डेप्थ पे डिक्रीज कम होगा, 1% से कम हो। एक ही तो आंसर है, 1% से कम। आया ध्यान में? तो अगली बार से सॉल्व करना ही नहीं है। एक चीज पक्की हो गई, डिक्रीज होने वाला है, मतलब इंक्रीज तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ए और बी में से एक ऑप्शन आएगा। नंबर टू इज दैट के सेम हाइट और सेम डेप्थ अगर रहे तो मोर लॉस इज एट हाइट। अगर हाइट पे 1% लॉस है तो इधर कम होगा। हाँ, ओके, डन, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ओके। The depth at which the effective value of acceleration due to gravity is g/4 is। आपको बोला है द डेप्थ एट विच, मतलब डी फाइंड करो, जहां पे जी डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? g/4। तो जी डी बाई जी इक्वल टू 1/4, लेकिन जी डी बाई जी कितना है? हाँ, 1 माइनस डी बाई आर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, from equation number 1 and 2 you have gd by g, अच्छा, 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू 1/4, 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू डी बाई आर, तो कितना आ गया? 3/4। तो डेप्थ कितना आ गया? 3r/4, 3r/4। डेप्थ ही पूछा था ना हमको, व्हाट दे आर आस्किंग इज डेप्थ। डेप्थ 3r/4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने जानबूझ के लिंक किया है। पहले आपको मैंने एक वैल्यू बता दी g/4 और पूछा डेप्थ कितना। जिस डेप्थ पे वैल्यू g/4 होगा वो आपको डेप्थ पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, इट इज सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ वहां पे g/4 था, यहाँ पे g/n है। द डेप्थ d एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू ऑफ सरफेस। तो पिछले केस में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जी डी इक्वल टू g/4, यहाँ पे क्या बोला है? g/n। और आपसे वापस क्या पूछा है? डेप्थ। तो जी डी बाई जी कितना है? 1/n, इक्वेशन नंबर 1। बट जी डी बाई जी कितना होता है? 1 माइनस डी बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, from equation number 1 and 2 you will have 1 minus d by r equal to 1/n, therefore shift 1 minus 1 by n equal to d by r, therefore n minus 1 by n equal to d by r, therefore d equal to n minus 1 by n into r। तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब ये सेम पिछला जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन, यहाँ ये जो नीचे दिया होता है इसको पता है क्या मान लेते हैं हम लोग? एन। अभी तुमने पूरा सॉल्व किया, अब जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की। क्या आ गया फॉर्मूला? n माइनस 1/n। पुट n की वैल्यू 4 माइनस 1, 3/4। 3/4 आया था क्या आंसर? यस। अगर बोला होगा कि डेप्थ पे g/8 है, 7/8, g/16 है, 15/16। तो इंटेंशनली मैंने क्वेश्चन को ऐसा रखा है कि तुम पहले ये सॉल्व करो, फिर समझ में आ जाए कि करना ही नहीं है, ये सब करना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, n माइनस 1/n इंटू आर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ with which it has to rotate so that accident due to gravity on 60° latitude, at 60° latitude becomes 0। 60° लैटिट्यूड पे एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी 0 होने के लिए
एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का क्या होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड एट पोल जी वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 9.8 होता है, इन्होंने 10 बोला है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन इतना है कि एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, वैसे हम 20 पॉइंट समथिंग पे है बाय द वे, 60 डिग्री लैटिट्यूड, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। 60 डिग्री लैटिट्यूड आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा यहाँ पे, समवेयर ओवर हियर। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे, जी की वैल्यू 0 होने के लिए ओमेगा क्या होना चाहिए? व्हाट इज वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटिट्यूड? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? तो जी एट 60 डिग्री विल बी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60, राइट? बराबर, क्लियर? बट आपको गिवन में क्या बोला है? आपको बोला है जी एट 60 डिग्री इज 0, देयरफॉर 0 इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज कॉस 60? तो उसका स्क्वायर 1/4, इसको शिफ्ट कर लो, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू जी, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4g बाय आर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4g बाय आर। तो ओमेगा मिल जाएगा यहाँ से, therefore ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ 2g बाय आर। मैं जानबूझ के, चलो 4 है ना, तो ठीक है, 4 था, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, 4g बाय आर, ठीक है, करेक्ट है? श्योर श्योर, यस। 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 10, इसके लिए कितनी है? 6400 किलोमीटर है, मतलब 10⁻²। अब एक काम करो, ये टोटल कितने हैं? 5, और ऊपर कितना है? 1, तो नीचे कितना बचेगा? 10⁻4। तो देखो, एक ये और एक ये कैंसिल कर देते हैं। 2 अंडर रूट ऑफ 1/64 इंटू 10⁻²। 64 का रूट होता है 8 और 10⁻², 1 एंड 4, 1/4 होता है 0.25, कितना होता है? 0.25, और ऊपर आ गया 10⁻²। फिर आ गया 2.5 इंटू 10⁻³ हमारा 0.25 इंटू 10⁻² है, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर ए, रेडियन पर सेकेंड ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये मोस्टली नीट में आया है, जेई में भी एक्सपेक्टेड है। Infinite bodies each of mass 3 kilogram are situated at distances 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter। जैसे 1 to 4 8 ऐसा सुनोगे तो कौन सा प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, respectively on x-axis. The same question was there also in electrostatics. The resultant intensity of gravitational field, gm by r square at the origin will be। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे मासेस है, तो दे हैव केप्ट मासेस हियर एट 1 मीटर, देन एट 2 मीटर, देन एट 4 मीटर, देन एट 8 मीटर, देन 16, देन 32, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको पूछा है कि ओरिजिन पे पहली बात तो कोई मास नहीं है। आपको पूछा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे टोटल फील्ड कितना है बिकॉज ऑफ ऑल दिस मासेस। जैसे आप बोलते हो ना, एक पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 + E2 + E3, तो वैसे आपको पूछा है व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टोटल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ऐसा आपको पूछा है, राइट? तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट मास। मैं एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, इसको बोलता हूँ डी। तो ड्यू टू ए, ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो मैं ओ ए ओ बी ओ सी ऐसा लिखूंगा नहीं, हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं? ओरिजिन, तो वो तो क्लियर है। तो टोटल
intensity, gravitational field intensity at origin is intensity due to mass at A, intensity due to mass at B, intensity due to mass at C, intensity due to mass at D, intensity due to mass at E, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे मासेस है, हर एक का मास कितना है 3 kg। तो फिलहाल मैं इसको m बोल देता हूँ, हमको पता है कितना है 3 है, लेकिन मैं फिलहाल क्या बोल रहा हूँ m, करेंगे बाद में m इक्वल टू 3 डाल देंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला gm बाय आर स्क्वायर, तो आर ए स्क्वायर प्लस gm बाय आर बी स्क्वायर प्लस gm बाय आर सी स्क्वायर प्लस gm बाय आर डी स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब में से g और m आ जाएगा कॉमन। आर ए पॉइंट का डिस्टेंस था 1 मीटर, इसका डिस्टेंस था 2 मीटर, फिर इसका डिस्टेंस था 4 मीटर, फिर था 8 मीटर। तो 1/1 का स्क्वायर इज 1, 1/2 स्क्वायर इज 4, 1/4 स्क्वायर इज 16, 1/8 स्क्वायर इज 64 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलने दो ऐसा, राइट। ये आ गया जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो 1/4 है, तो जिनको जीपी नहीं पता वो अभी पता कर लो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, आपके पास इन्फिनाइट टर्म, फाइनाइट भी हो सकती है, नॉट सेइंग इन्फिनाइट, बट जो टर्म्स है उसका जो रेशियो होता है ना वो होता है कॉमन। जैसे आप सेकेंड टर्म को पहले से डिवाइड करके देख लो, क्या मिलेगा 1/4। थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लो 1/4, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर लो 1/4, फिफ्थ को 4 से डिवाइड कर लो 1/4। दिस इज कॉल्ड एज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दे हैव अ कॉमन रेशियो। फिर आपको पता होना चाहिए कि सम, अब बाय द वे m कितना है 3, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे m की जगह पे कितना 3, तो आ जाएगा 3g। फिर ये जो टर्म है, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ a इक्वल टू 1। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म, राइट। तो हियर 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 is a GP, geometric progression with first term a equal to 1 and common ratio r equal to 1/4। फिर आपको बताना चाहिए what is the sum of first n terms of a GP। of course infinite terms है, लेकिन कभी कभी n terms का भी क्वेश्चन आ गया तो पता तो होना चाहिए। what is sum of first n terms? a 1 minus r raised to n upon 1 minus r। करेक्ट। हमारे केस में टर्म्स कितने हैं, इनफिनाइट है ना, तो हमारे केस में n कितना है, इन्फिनिटी है। तो s infinity will be equal to a 1 minus r raised to infinity upon 1 minus r। बट r आपके पास है 1/4, तो r raised to infinity मतलब 1/4 raised to infinity। of course 1 raised to infinity is 1 because anything raised to infinity, sorry, anything raised to 1 is 1। तो तुम ऐसा भी लिखोगे तो बात एक ही है, राइट। फिर बोलोगे 1 raised to infinity is 1, तो 1/4 raised to infinity, 4 raised to infinity is infinity cube। what is 4 square 16, what is 4 cube 64, what is 4 raised to 4 256, what is 4 raised to infinity infinity, what is 1/infinity 0, so what is r raised to infinity 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। so therefore sum up to infinite terms will be a 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1 upon 1 minus r। ये आ गया आपका सम अप टू इन्फिनाइट टर्म्स। मैं डायरेक्टली बोल देता कि ये आता है फॉर्मूला, और ठीक है आता है, लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा ना फिर। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि एन टर्म्स के लिए भी क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये और वो कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ r रेज़ टू इन्फिनिटी हो जाता है 0, बाकी सब सेम है। तो यू शुड नो दिस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पता होना चाहिए, अरिथमेटिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देन और उसके ऊपर नहीं आते, क्योंकि बाद में बाकी प्रोग्रेशन भी है। कौन से है बाकी प्रोग्रेशन? हार्मोनिक, ओके, उस पर फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आते। तो देयरफॉर एस इन्फिनिटी ए की वैल्यू कितनी थी 1, 1 minus 1/4, तो हाउ मच 3/4, तो कितना आ गया 4/3। तो देयरफॉर हमारे पास जो ये था IG, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IG इक्वल टू कितना था 3g, और वो पूरा टर्म था, वो कितना आ गया 4/3, 3 3, तो आंसर इज
4G, तो आंसर इज 4G, तो 4G आना चाहिए। 4G, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक। अगला क्वेश्चन। The escape velocity from Earth is about 11 kilometer per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and same mean density as that of Earth is. अब सबसे पहले तो आपको escape velocity का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है 2gr या फिर gm बाय आर, अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इन्होंने डेंसिटी ऐसा मेंशन कर दिया है, तो हमको फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में लाना पड़ेगा। क्योंकि क्या बोला उन्होंने, एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है ना ट्वाइस ऑफ अर्थ है, the escape velocity from planet having twice the radius and same main density as that of Earth. Because they have mentioned density, so you have to write down density here. So V equal to under root of 2g by r, volume into density. तो escape velocity ये volume है, equal to under root of 2g by r. Volume is 4/3 pi r cube into density. ये ऊपर r क्यूब है, नीचे r है, तो r स्क्वायर। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 8 पाई बाई 3g r स्क्वायर रो, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर। सही है। रो तो कांस्टेंट है, सेम बोला, जी भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओनली आर स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम प्लैनेट, अगर रेडियस ट्वाइस है तो एस्केप वेलोसिटी भी ट्वाइस है। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दैट प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ। लेकिन प्लैनेट का रेडियस ट्वाइस ऑफ अर्थ है, तो ये रेशियो कितना है, 2 है। तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट इज 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से कितना था, 11, तो 2 इंटू 11 मतलब 22 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 22 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है।